Good morning students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places and you are revising your previous chapters continuously. So students, we are discussing about the chapter number 10, that is financial marketing. In this we have already discussed about the primary market and sources of issues of securities in the primary market. Now we are going to discuss the secondary market. Secondary market is a market in which securities are issued on the second time, means the security which is already issued by the company, now these securities are start trading in the stock exchange. Basically what happened, the security exchange do not issues the securities on the initial basis. When the trading of the securities are started, then security exchange deals in that types of securities. But before starting the trading in the security exchange, we have to follow certain procedures. We have to get registered with the Security Exchange Board of India, so that the Security Exchange Board of India allot the brokers, sub-brokers for us for buying and selling of securities. Now what are the stock exchange and how the procedure of this stock exchange is followed? Let us discuss these things. Now first thing is, what is the secondary market and how the securities are dealt in the secondary market. If you know, the secondary market are the stock market. That means if securities are issued and traded in the stock exchange, जैसे कि हमने सुना है कि दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है जो बेसिकली इंडिया में डील करते हैं. फर्स्ट इज BSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड द सेकंड इज NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. And third category is OTC, that is over the counter exchange of India. Both NSE and BSE are registered under the SEBI, that is Security Exchange Board of India. अब होगा क्या कि ये एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है. दैट मीन्स जैसे हमने सुना है कि बैंक्स को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, वो कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन बनाता है? वो बनाता है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. So the secondary market is also known as a stock exchange market because in this stock exchange helps in dealing with the security, that is buying and selling of the securities. अब अगर हमें सिक्योरिटीज, देखिए जब हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई स्टॉक एक्सचेंज उन सिक्योरिटीज़ को डील करता है क्योंकि एक बार जब सिक्योरिटीज़ इशू हो चुकी है मार्केट में तो कंपनी उसको अपनी लाइफ टाइम तक वापस नहीं लेती. बट क्या मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा फंड्स ब्लॉक हो गए क्या मेरे को कंपनी के वाइंड अप तक वेट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. मैं अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकता हूं. स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी बायर जो उस कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता है वो स्टॉक एक्सचेंज में बोल सकता है, और मैं एज अ सेलर अपनी सिक्योरिटीज़ अगर सेल करना चाहता हूँ तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर सकता हूँ. राइट नाउ it helps existing investors to divest and fresh investors to enter into the market. जनरली क्या होता है कि जो सिक्योरिटी होल्डर है या जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं? अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं. डाइवेस्टमेंट मतलब डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या कर देंगे? स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकते हैं. और जो फ्रेश इन्वेस्टर है जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो डायरेक्टली सिक्योरिटी एक्सचेंज से सिक्योरिटीज परचेज कर सकता है. नाउ it also contributes to the economic growth by channelizing the funds towards the most productive investments. भाई जनरली क्या होता है कि भाई जब कोई भी सेल एंड परचेज होता है सिक्योरिटीज़ का तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि भाई जो इकोनॉमी है उसमें फंड्स का इनफ्लो होता है. आज मैं सिक्योरिटीज़ कंपनी से 50 रुपीज़ पर शेयर में खरीद रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी सिक्योरिटी प्राइस भी इंक्रीज होगी. तो अब जो नया इन्वेस्टर है उसे वो जो सिक्योरिटीज़ 100 रुपीज़ में मिल सकती है, 150 रुपीज़ में मिल सकती है. तो जो डिफरेंस आया 150 एंड 50, दैट इज द इनफ्लो ऑफ करेंसी इन द इकोनॉमी. उसकी वजह से क्या हुआ, जो करेंसी थी, जो इनकम था, जो फ्लो था इनकम का, वो इकोनॉमी में एंटर हुआ और वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करने वाला है? कंट्रीब्यूट करने वाला है. राइट नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज. What is stock exchange and how it is important for the secondary market? Basically, a stock exchange is an institution which provide platform for buying and selling of existing securities. That means the securities which has already been issued in the market, stock exchange basically deals in that types of
सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज हमने ऑलरेडी इशू कर दी। फॉर एग्जाम्पल आज मैं रिलायंस की सिक्योरिटीज परचेज करना चाहता हूं तो मेरे को रिलायंस के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं इजीली BSE एंड NSE में से वो सिक्योरिटीज परचेज कर सकता हूं। दैट मीन्स कंपनी एक बार सिक्योरिटी इशू करने के बाद वापस से परचेज नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं उस कंपनी में तो क्या कर सकता हूं, स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटी परचेज कर सकता हूं। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, बिकॉज जो नाम ट्रांसफर करना है, जो नाम नए इन्वेस्टर के नाम से सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को इंटीमेट करेगा, मेरे को डायरेक्टली इस कंपनी से डील करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। द फर्स्ट थिंग इज लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। देखिए स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्यों जरूरी है। देखिए क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, दैट मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किस एक्ट के अंदर बना है, वो बना है हमारा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर। जैसे हमने पढ़ा है कि भाई सारी कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है, कंपनीज एक्ट, वैसे ही सिक्योरिटीज को रेगुलेट कौन करता है, हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 उसको रेगुलेट करता है। जनरली क्या काम है स्टॉक एक्सचेंज का, that means any body of individuals whether incorporated or not constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying and selling and dealing in the securities। that means जब बात आती है सिक्योरिटीज को इशू करने की, तभी कहाँ का रोल स्टार्ट होता है, तभी स्टॉक एक्सचेंज का रोल स्टार्ट होता है, तभी स्टॉक एक्सचेंज हमारी हेल्प करता है सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करने के लिए, राइट। Now what are the functions of the stock exchange? As we know, there are various types of functions which are being performed by the stock exchange and the first one is providing liquidity। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो फंड्स अवेलेबल कराना। दैट मीन्स हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई ऐसी चीज़ जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है वही क्या होती है, लिक्विड। तो लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड कराता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो इकोनॉमी में फंड्स अवेलेबल कराना, कंपनीज को फंड्स अवेलेबल कराने का काम किसका होता है, स्टॉक एक्सचेंज का, राइट। नेक्स्ट थिंग इज प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। दैट मीन्स जब सिक्योरिटीज डील होती है, सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेज होती है, तो उस केस में क्या होता है, प्राइस डिसाइड की जाती है सिक्योरिटीज की। दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई। कैसे होता है भाई, हमें पता है कि भाई किसी भी सिक्योरिटीज की जब प्राइस डिसाइड की जाती है तो कैसे की जाती है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई से। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होगी, कैसे होगी प्राइस ज़्यादा, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। आज हम किसी भी प्रीशियस स्टोन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बात की डायमंड की, तो उस सिचुएशन में क्या है, डायमंड इतना कॉस्टली क्यों है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टोन की जो सप्लाई है वो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसी की वजह से अगर हम दूसरे किसी मेटल की बात करते हैं, दूसरे किसी चीज़ की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या उसकी प्राइस कम है, क्योंकि उसकी सप्लाई ज़्यादा है, इजीली अवेलेबल है और उसकी डिमांड इतनी नहीं है मार्केट में, तो जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है उसको कम प्राइस पे सेल करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या करता है, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटीज प्राइजेस डिसाइड करता है। थर्ड थिंग इज सेफ्टी ऑफ द ट्रांजेक्शंस। देखिए कैसे, हमें पता है कि भाई सिक्योरिटी एक्सचेंज को रेगुलेट करता है सेबी, तो क्या होगा, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे या जो भी डीलिंग होगी वो क्या होगा, सिक्योर्ड होगी। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहती है, सिक्योर्ड रहती है, किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाती या इसका अल्टीमेट फायदा कोई नहीं ले सकता है। आजकल क्या हो रहा है कि भाई सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है। पहले के टाइम में क्या होता था कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी और ब्रोकर अपना प्रॉफिट कमाने के लिए सिक्योरिटीज उस पर्सन को सेल करता था जहां उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, आजकल तो हम ऑनलाइन खुद ही डील कर सकते हैं सिक्योरिटीज से। वी हैव एन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंड सॉफ्टवेयर अवेलेबल विद द ब्रोकर, तो उसके साथ क्या होगा, हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं। तो इस चीज से क्या रहती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है और स्टॉक एक्सचेंज में हम इजिली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज contribution to the economic growth, because securities are continuously buying and selling
अब जितनी बार सेलिंग और बाइंग होगी, डेफिनेट सी बात है प्राइस में डिफरेंस होगा। जिस प्राइस पे मैंने कमोडिटी परचेज करी, डेफिनेटली मेरे प्रोसीजर क्या रहेगा, मैं उससे ज़्यादा मैं उसको सेल करूंगा। तो जब ज़्यादा में सेल होगी तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कमीशन भी किस पे चार्ज करेगा, अपना सेलिंग प्राइस पे। और सेलिंग प्राइस पे अगर कमीशन चार्ज करा है तो डेफिनेट सी बात है जो एक्सेस फंड अवेलेबल हुआ वो किस में काम आएगा, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम आने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज स्प्रेडिंग ऑफ द इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज प्रमोट करता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कैसे? सिक्योरिटी एक्सचेंज आपको बेनिफिट्स बताता है कि भाई आप इन्वेस्ट कीजिए सिक्योरिटीज़ के अंदर, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज करते हैं, अपनी सेविंग को यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो क्या होता है, जो एक्सेस फंड रखा रहता है हमारे पास, जो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, जो हमने बैंक में रखा हुआ है, उसका क्या होता है, प्रोडक्टिव यूज़ किया जा सकता है। उससे हम क्या कर सकते हैं, मनी से ज़्यादा मनी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने कोई भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया, आज सिक्योरिटी की वैल्यू अच्छी हो रही है, गुडविल अच्छी है कंपनी की, तो डेफिनेट सी बात है हमें रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज़ के कोई शेयर्स परचेज करता हूं और जब मैंने उसको सेल किया, जब शेयर्स की प्राइस 150 थी, जो डिफरेंस आया 50 रुपीज़ का, वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और इसी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, so we are discussing about the trading settlement procedure. Previously the stock exchange do not provides any kind of facilities of doing the trading online. तो बेसिकली सारी ट्रेडिंग्स क्या होती थी, फिजिकल होती थी। जिस टाइम आप डील को लॉक करते थे और जो फाइनल उसका ट्रांजैक्शन इफेक्ट होता था, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था और इसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलता था, ब्रोकर्स को इसका बेनिफिट मिल जाता था। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, सारे प्रोसीजर्स को ऑनलाइन स्टार्ट किया गया। Now, what are the trading mechanism? It is T+2 basis. That means the transaction day plus 2 days are given for the actual settlement. तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता और ब्रोकर आपकी डील का एडवांटेज नहीं ले सकता। बेसिकली सेकेंड एडवांटेज इज ऑल दी प्रोसीजर्स आर नाउ गेटिंग ऑनलाइन। सब चीज़ हम ट्रेडिंग होते हुए देख सकते हैं और जैसे ही हमने डील लॉक करी उसी टाइम क्या हो जाता था, हमारा ट्रांजैक्शन इफेक्ट में आ जाता था। तो जो गैप हमें पहले ब्रोकर को मिलता था वो गैप क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया और उसका एडवांटेज अब ब्रोकर्स नहीं ले सकते। तो बेसिकली अगर हम पहले की बात करें तो सेटलमेंट कैसे होता था, सेटलमेंट को टाइम लगता था वीकली, बिकॉज सारी चीज़ें फिजिकल होती थी। हम डील को लॉक करेंगे, डील एक्चुअल इफेक्ट में आएगी और उसके बाद जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा अमाउंट, तो उस पूरे प्रोसीजर में क्या होता था, बहुत लंबा टाइम कंज्यूम हो जाता था। लेकिन उस चीज़ को देखा गया और उस चीज़ को खत्म किया गया। अब जो ट्रेडिंग होती है वो होती है T+2 बेसिस। दैट मीन्स जिस टाइम आपने ट्रांजैक्शन किया उसके विद इन 2 डेज आपकी जो सिक्योरिटीज है वो सेल हो जाएंगी, या फिर अगर आपने परचेज का ऑर्डर दिया है तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी, राइट। T+2 बेसिस। तो जनरली क्या होता था कि भाई फिजिकली में क्या होता था, सारे डिफेक्ट्स जो होते थे, जो डिफॉल्ट्स आते थे ब्रोकर्स की तरफ से कि भाई सिक्योरिटीज इफेक्ट में नहीं आई, सिक्योरिटीज परचेज हुई नहीं, हमने ऑर्डर दिया उसके बाद भी, और अल्टीमेटली हमें लॉस हो जाता था। लेकिन आज का सिनेरियो को अगर हम कंपेयर करें, आज के सिनेरियो को देखा जाए तो उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं और जो फेलियर थे ट्रांजेक्शन्स के वो बहुत हद तक क्या हो गए, खत्म कर दिए गए। नेक्स्ट, what are the requirements to being a broker under the stock exchange? The first thing is you have to buy an PAN number. That means you have to register with the income tax department. You have to get the PAN number from the income tax department. Next, you have to give the proof of your birth and your address. That means आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करेंगे और आपके एड्रेस को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड ऑक्यूपेशन। दैट मीन्स आपकी सारी जो डिग्रीज है, जो लेटेस्ट एजुकेशन आपने ले रखी है, वो सारी डिग्रीज आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट थिंग, योर रेजिडेंशियल स्टेटस। दैट मीन्स यू आर इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडियन। दैट मीन्स ऐसा कोई भी सिटीजन जो फॉरेन से बिलोंग करता है या फिर जिसने 182 डेज कंप्लीट नहीं करे इंडिया के अंदर, वो इंडियन रेजिडेंट नहीं कहलाया जाता। तो उस सिचुएशन में आपको स्टॉक ब्रोकर की तरह डील करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो या तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हो या फिर आप इंडियन सिटीजन हो तो ही आप स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं या फिर आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ डील कर सकते हैं।
नेक्स्ट थिंग इज योर बैंक अकाउंट डिटेल सो दैट ऑल द ट्रांजेक्शन्स गेट सेटल्ड, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी हम सेल एंड परचेज करते हैं जो सारा अमाउंट क्रेडिट होता है वो किसके अकाउंट में होता है, ब्रोकर के अकाउंट में, और ब्रोकर विल डिडक्ट हिज कमीशन एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज ट्रांसफर टू द क्लाइंट्स अकाउंट, राइट। Next thing is depository account details. That means if you are dealing with any kind of depository, किसी भी depository के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके चल रहे हैं तो उसकी अकाउंट डिटेल भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। Depository is generally an agent who sell and purchase the securities on behalf of the client. तो उस depository के अकाउंट की डिटेल्स भी आपको सबमिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट थिंग इज नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद whom यू आर रजिस्टर्ड, यानी उसके साथ जो भी ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होंगे, जो भी ब्रोकर्स उसके लिए काम कर रहे होंगे, उन सारे ब्रोकर्स की भी आपको डिटेल सबमिट करनी होगी। जितने भी ब्रोकर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपके साथ रजिस्टर्ड है या आपके लिए काम, आपकी सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं, उन सारे ब्रोकर्स की डिटेल्स भी आपको सबमिट करनी पड़ती है। एंड लास्ट वन इज क्लाइंट कोड नंबर विद द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दैट मीन्स यू हैव टू गिव द क्लाइंट कोड नंबर, दैट मीन्स जो यूनिक नंबर आपको अलॉट किया गया है वो यूनिक नंबर भी आपको सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज नाउ द इन्वेस्टर हैज टू ओपन एंड डीमेट अकाउंट। इट इज वेरी सिमिलर टू अवर बैंक अकाउंट। क्या होता है कि एक डीमेट अकाउंट आपको ओपन कर दिया जाता है, क्योंकि आजकल सारी सिक्योरिटीज ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स रखने की जरूरत नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी सारी सिक्योरिटीज ऑनलाइन क्रेडिट की जाएंगी, और अगर आप सेल करते हैं तो उसी अकाउंट में से क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, राइट। विद द बेनिफिशियरी ओनर, दैट मीन्स बेनिफिशियरी ओनर कौन है, बेनिफिशियरी ओनर है वो डिपॉजिटरी जिसके पास आप जाकर रजिस्टर हुए एज एन क्लाइंट। क्योंकि कंपनी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें नाम किसका लिखा जाता है, उसमें नाम लिखा जाता है डिपॉजिटरी का, उसमें आपका नाम नहीं लिखा जाता। अगर आप फिजिकल सिक्योरिटीज परचेज करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका नाम होगा कंपनी के पास, लेकिन इफ यू हैव कन्वर्टेड योर सिक्योरिटीज इनटू एन ऑनलाइन प्रोसेस और यू हैव कन्वर्टेड योर सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देन कंपनी के रिकॉर्ड्स में किसका नाम आएगा, कंपनी के रिकॉर्ड्स में आएगा डिपॉजिटरी का नाम। उस सिचुएशन में आपका और कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है। कंपनी के हिसाब से वो सिक्योरिटीज किसको सेल की गई है, वो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी को सेल करेगी। नेक्स्ट थिंग इज द इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय एंड सेल द शेयर्स। अब देखिए, अगर कंपनी जो डिपॉजिटरी है वो उसको रजिस्टर कर लेती है अपने पास, और डिपॉजिटरी के पास आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, तो आप इजीली सेल एंड परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिजिकल सिक्योरिटीज सेल परचेज नहीं हो रही है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी शेयर्स आप परचेज करना चाहते हैं, कोई भी डिबेंचर्स आप परचेज करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली किसको ऑर्डर देना पड़ेगा, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी आपके अकाउंट को अकॉर्डिंगली क्रेडिट कर देगा या डेबिट कर देगा, right? Now the next thing is point number 4, the broker will then go online and connect with the main stock exchange and match the shares. That means if हमारे पास 500 शेयर्स ही अकाउंट में अवेलेबल हैं और अगर हम 600 शेयर सेल करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे ब्रोकर की ड्यूटी बनती है कि पहले वो चेक करें आपके अकाउंट में उतने शेयर्स अवेलेबल हैं या नहीं, और अगर शेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो आपको इंटीमेट करता है कि भाई आपके अकाउंट में इतने शेयर्स अवेलेबल नहीं है। ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलता है जैसे हमारा अकाउंट नॉर्मली सेविंग अकाउंट चलता है। उसमें क्या होता है, जितने फंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसी के हिसाब से हम सेल एंड परचेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो बैंक क्या करती है, हमें इंटीमेट करती है कि आपने जो ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया है वो प्रोसेस नहीं हो सकता, बिकॉज आपके पास उतने फंड्स अवेलेबल नहीं है। सेम ही स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, उसी तरीके से डील करता है। अगर आपके पास उतने शेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज when the shares can be brought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal. That means if the shares are purchased or sold out on your behalf, then the broker will intimate you that the shares has been credited in your account. आपके अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट कर दिए गए हैं, और उसकी इंटीमेशन आपको ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको वो चीज़ बता दी जाती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई जो शेयर्स हमने परचेज करे वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज after a trade has been executed within 24 hours, the broker issues a contract note. That means जिस टाइम ट्रेड हो गई है उस टाइम
और उसके विद इन 24 आवर्स क्या करता है ब्रोकर, आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नोट साइन करता है कि भाई आपके बिहाफ पे जो मैंने शेयर्स परचेज करे वो आपकी परमिशन से किए गए हैं, और दोनों पार्टीज उस पर क्या कर देती है, अपने अपने साइन कर देती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्योंकि अगर मान के चलिए हमने कोई भी सेल परचेज इनिशिएट किया या हमने ऑर्डर दिया ब्रोकर को और ब्रोकर ने वो चीज़ इनिशिएट कर भी दी, कल को हमने ब्रोकर को बोला कि भाई हमने ये चीज़ बोली ही नहीं थी, तो ब्रोकर के पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसी के लिए क्या किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाया जाता है जिससे पार्टी के बीच में और ब्रोकर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उन डिस्प्यूट को सेटल किया जा सके और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट थिंग इज नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स ब्रॉट। दैट मीन्स अब क्या होगा कि जो क्लाइंट है उसको अगर जो भी शेयर्स उसके बिहाफ पे परचेज किए गए हैं उतना अमाउंट ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, और अगर शेयर सेल किए गए हैं तो ब्रोकर क्या करेगा, जितना भी अमाउंट क्लाइंट का बनता है वो क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। राइट, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज द कैश इज पेड और द सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड ऑन द पेड डे विच बिफोर द ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज। दैट मीन्स ये जो T+2 डे वाला कंसेप्ट है ये मैक्सिमम टाइम है जो स्टॉक एक्सचेंज ने आपको अलॉट किया है। दैट मीन्स अगर आप कोई भी ऑनलाइन सिक्योरिटीज सेल या परचेज करते हैं तो विद इन 2 डेज उसका इफेक्ट आ जाना चाहिए। दैट मीन्स इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। T+2 इज मैक्सिमम डे। जनरली क्या होता है, जैसे हम NEFT, RTGS ऐसे कोई प्रोसीजर करते हैं उसका अकाउंट में इमीडिएट इफेक्ट दिखता है, सेम ही प्रोसीजर यहाँ पे होता है। लेकिन किसी भी वजह से अगर टाइम लगता है तो वो मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 2 डेज का हो सकता है। उससे ज़्यादा टाइम किसी भी सेल एंड परचेज में एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज on the T+2 day the exchange will deliver the shares or make the payment to the other broker। that means अगर हमने शेयर्स डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करे हैं तो जो अमाउंट है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमने वो अमाउंट या फिर वो शेयर्स किसी ब्रोकर से परचेज करा है तो उस सिचुएशन में अमाउंट किसको देना पड़ेगा, ब्रोकर को देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये 2 दिन के अंदर सारा प्रोसीजर, दैट मीन्स फाइनल सेटलमेंट 2 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट, the broker can make delivery of the shares in demat form directly to the investors demat account। अब क्या होगा, जो शेयर्स परचेज किए गए हैं वो शेयर्स डायरेक्टली किसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। देखिए एक प्रोसीजर समझिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने में क्या होता है, पहले हमें वो डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी के हैं वो सबमिट करने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो जो पेपर है जो हमने प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट सबमिट किया, इट इज जस्ट सिमिलर टू योर एप्लीकेशन फॉर्म जब आप शेयर्स परचेज करने जाते हो। उसके बाद क्या होता है, जो आपका ब्रोकर होता है वो क्या करता है, अलग अलग पार्टीज के साथ कम्युनिकेट करता है। वैसे ही यहाँ पे ब्रोकर जो भी सेलर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है। उसके बाद जिस भी क्लाइंट के साथ डील फिक्स होती है उससे अमाउंट ले लिया जाता है। तो ब्रोकर भी क्या करेगा, जो पर्सन शेयर्स परचेज करना चाहता है उससे अमाउंट रिसीव कर लेगा। अमाउंट रिसीव करने के बाद जो अपना कमीशन है उसको डिडक्ट करेगा और अल्टीमेटली अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देगा। तो सेम यही प्रोसीजर किसके अंदर अडॉप्ट किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन। देखिए क्या होता है कि जब सिक्योरिटीज 2003 से पहले की बात करते हैं, 2003 से पहले क्या होता था, सारी चीजें फिजिकली डील होती थी। दैट मीन्स कंपनी विल इशू अ शेयर सर्टिफिकेट एंड यू हैव टू कीप दैट शेयर सर्टिफिकेट अंटिल एंड अनलेस यू डू नॉट वांट टू सेल दैट सिक्योरिटीज। तो अगर आपके पास वो शेयर सर्टिफिकेट है तो ही माना जाता है कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया गया। अगर वो शेयर सर्टिफिकेट आपसे लॉस्ट हो जाते हैं तो कंपनी से आप डुप्लीकेट इशू करवा देते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, उसमें मेरे को टैक्स पे करना पड़ता था, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। और वो स्टैम्प ड्यूटी क्या थी, 0.3% ऑफ द टोटल अमाउंट। इसका मतलब पहली चीज तो मेरे को ब्रोकर का कमीशन, उसके बाद 0.3% हर बार मेरे को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, चाहे मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले रहा हूं या फिर मैं कोई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवा रहा हूं। तो ये जो खर्चे थे मेरे पास, जो एक्सपेंसेस थे, ये मेरे लिए क्या थे, वेस्ट थे, ये मेरे प्रॉफिट को कम कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, 2003 के बाद एक स्टेप लिया गया स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। उन्होंने क्या बोला कि अब हम फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में डील नहीं करेंगे, जो भी ट्रेडिंग की जाएगी वो किस में की जाएगी, ऑनलाइन बेसिस पे की जाएगी। मतलब जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही हम सारा प्रोसीजर ऑनलाइन अडॉप्ट कर देंगे।
तो डीमेटलाइजेशन में क्या हुआ, जो आपकी फिजिकल सिक्योरिटीज थी उन फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। दैट मीन्स अब आपको कोई भी शेयर सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने शेयर सर्टिफिकेट को डिपॉजिटरी के पास डिपॉजिट करेंगे, वो अपने पास उसको सिक्योर करके रखेगा और जितने शेयर्स का वो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी ने इशू कर रखा है आपके अकाउंट पर उतने शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज क्या होता है कि भाई अगर मेरे को चीज सही नहीं लग रही, मेरे को डील नहीं करना, तो मैं वो शेयर सर्टिफिकेट उस डिपॉजिटरी से वापस ले सकता हूं। उस सिचुएशन में क्या होगा, जो मेरा ऑनलाइन अकाउंट है, जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, उसको बंद कर दिया जाएगा और शेयर सर्टिफिकेट वापस से मेरे को रिटर्न कर दिया जाएगा, राइट। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, ऑल द ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज आर नाउ डन थ्रू द कंप्यूटर टर्मिनल्स। दैट मीन्स अब क्या होता है, जो सारी सिक्योरिटीज को डील किया जाता है वो कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट। तो अब क्या होगा, आपको अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो आपको क्या चाहिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आप उन्हीं से अपनी सिक्योरिटी सेल और परचेज कर सकते हो या उन्हीं से ही आप ब्रोकर को ऑर्डर दे सकते हो। Now, since all the systems are computerized, buying and selling of securities are settled through the electronic book entry form. That means यहाँ पे एक फायदा और हो गया कि जब पहले हम सिक्योरिटी सेल एंड परचेज करते थे 2003 से पहले, तो क्या होता था, सारी एंट्रीज फिजिकली मेंटेन कर रही थी और जो ह्यूमन एरर होने के चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। तो कि भाई आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, कंपनी उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, तो आपका जो प्रॉफिट था वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको कोई भी अकाउंट फिजिकली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप सेल एंड परचेस करते हैं उसकी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज, this is the process where securities held by the investor in physical form are cancelled and the investor is given the electronic entry or the number he or she hold in the electronic balance in his account. That means क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स पहले फिजिकल सिक्योरिटीज हैंडल करता था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक एंट्री है वो जनरेट कर दी जाएगी। अब जितने भी ट्रांजेक्शन आपके होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट थिंग इज, for this the investor has to open a demat account. Demat account is a short form of dematerialization. That means अब क्या होगा कि आपके जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होंगे वो डीमेट फॉर्म में होंगे, आपको फिजिकल फॉर्म में ट्रांजैक्शंस नहीं करने। That with the organization is called as depository. In fact, all the initial public offers are issued in the dematerialization form. If company is going to issue a shares to the public, तो अब क्या होगा, कंपनी को भी सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। कंपनी अब कोई भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अगर मैंने सिक्योरिटीज फिजिकली हेल्ड कर रखी है तो मैं ट्रेडिंग कैसे करूँगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि भाई सारी सिक्योरिटीज जो डील होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगी। तो कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आप किसी भी डिपॉजिटरी के पास जाकर अपने शेयर्स को डिपॉजिट कर दीजिए और उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा दीजिए, लेकिन ये ऑप्शनल है आपके ऊपर। अगर आप फिजिकली डील करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, राइट। The next thing is, the Security Exchange Board of India has made the mandatory for the settlement procedures to take place in the demat form in certain selected securities. That means कुछ ऐसी selected securities अभी भी हैं जिसके लिए सेबी ने, that is Security Exchange Board of India ने ये बोल दिया है specifically कि आपको वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली ही डील करनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ है वो, जैसे हमारे इक्विटी शेयर्स, हमारे डिबेंचर्स, ठीक है, ये एक ऐसे सिक्योरिटीज हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही डील हो सकती हैं। इसके अलावा चाहे हमारे बॉन्ड्स हों या और भी कोई सिक्योरिटीज हों, उनको आप फिजिकली भी डील कर सकते हैं, राइट। नाउ द फिजिकल शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैन बी रिकन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट, दैट इज रीमटेरियलाइजेशन। कई बार आपके ये केस स्टडी फॉर्म में या फिर डिफरेंस फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या डिफरेंस है रीमटेरियलाइजेशन एंड डीमटेरियलाइजेशन में। तो देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जब हम हमारी फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसीजर तो क्या होता है, डीमटेरियलाइजेशन, या फिर इसे हम डीमेट फॉर्म भी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज दोबारा से फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, रीमटेरियलाइजेशन या फिर रीमेट भी इसे बोला जाता है, राइट। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। नेक्स्ट थिंग इज,
हाउ द वर्किंग ऑफ द डीमेट सिस्टम टेक्स प्लेस, कैसे डीमेट अकाउंट, कैसे डीमेट प्रोसीजर्स अडॉप्ट किया जाता है, कैसे इसका प्रोसीजर होता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? ये एक ऐसा पर्सन है जो डिपॉजिटरी के लिए काम करता है। डिपॉजिटरी वो पर्सन होगा जो ब्रोकर होगा, उसके नीचे जितने भी एजेंट्स काम करते हैं वो कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्या होगा? अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आइदर अ बैंक, ये एक बैंक हो सकती है, ब्रोकर और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। कोई भी ऐसा पर्सन क्या हो सकता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकता है। वो क्या करेंगे? एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट दैट इज पैन कार्ड डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, पावर ऑफ अटर्नी में बी कंप्लीटेड। अब वो पर्सन क्या करेगा? जो भी क्लाइंट उसके पास आएगा उस क्लाइंट का एक अकाउंट ओपन करेगा और उस अकाउंट को क्या बोला जाएगा? डीमेट अकाउंट। ठीक है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे आपको क्या करना है? अपना पैन कार्ड, अपनी फोटोग्राफ और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नाउ अब जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस कंपनी ने आपको शेयर सर्टिफिकेट दिए होंगे, वो शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपने पास रख लेगा, क्योंकि उनको क्या करना है? वो शेयर सर्टिफिकेट पहले कंपनी के साथ कंफर्म करने हैं कि भाई इस पर्सन ने कहीं फ्रॉड सर्टिफिकेट तो नहीं बना रखा, क्या आपने शेयर सर्टिफिकेट उनको अलॉट किया है क्या? वो कंपनी के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। Next, if the shares are applied in the public offer, simple details of the DP and demat account are to be given and the shares are allotted would be automatically credited. That means अब अगर मैं किसी भी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या कंपनी में शेयर्स परचेज करना चाहता हूँ तो मेरे को शेयर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड द कंपनी विल ऑटोमेटिकली क्रेडिट दैट शेयर्स इन द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अकाउंट। ओके, the next thing is if the shares are to be sold through the broker, the DP is to be instructed and the debit the account with the number of shares. Now if I want to sell any shares then होगा क्या? अब मेरे को क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ये बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इस कंपनी में अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा? मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा और उतने शेयर्स को क्या कर देगा? सेल कर देगा सिक्योरिटी एक्सचेंज के अंदर। द नेक्स्ट थिंग इज the broker then gives the instruction to his DP for delivery of the shares to the stock exchange. अब क्या होगा? That particular broker will intimate to the depository participants and depository participant will ultimately sell that shares to the stock exchange. क्या होगा? जो भी बायर वो शेयर्स परचेज करना चाहता है उसका अकाउंट तो क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा और उतने ही शेयर से मेरा अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। The next thing is the broker then receives the payment and pay to the person for the shares sold. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो ब्रोकर जितने भी शेयर्स आपने सेल करे हैं और जिस प्राइस पे आपने वो शेयर सेल करे हैं उसके अकॉर्डिंग अमाउंट अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 days. दैट मीन्स यहाँ पे वो प्रोसीजर अडॉप्ट होता है कौन सा? T+2 days। मीन्स जिस दिन आपने स्टॉक ब्रोकर को बोला उस दिन से आगे वाले 2 दिन इसमें हमारी पब्लिक हॉलीडेज और जो बेसिक हॉलीडेज है वो इंक्लूड नहीं होती, तो नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका अकाउंट क्या कर दिया जाता है? सेटल कर दिया जाता है।